آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے ٹاپک کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی ہمیشہ بہت اہمیت رہی ہے۔ جب ہم کسی چیز پر خیال کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تب ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ویلیو بیسڈ ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم پسند کریں گے، بہتر سمجھیں گے، اسی چیز کو ہم اپنے عمل میں لے کر کے آئیں گے۔ رہی بات کہ ہم اگر اس بات پر غور کریں کہ صفائی کیوں ضروری ہے اور صفائی کا اثر کیا پڑتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں بہت گندگی ہو، تو جہاں بھی گندگی ہوتی ہے وہاں بدبو بھی رہتی ہے، بیڈ اسمیل رہتی ہے، جس کا کہ ہمارے ذہن پر، ہمارے مائنڈ پر برا اثر پڑتا ہے۔ برا اثر پڑتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ احساسات کے تحت آگے بڑھتی ہے۔ اگر ہماری فیلنگ میں چیزیں بہتر ہیں، ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں، تو دیکھنے میں آتا ہے کہ خوشی لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر ہم کسی ایسے باغیچے میں گئے ہیں جہاں طرح طرح کے پھول ہیں، خوشبو ہے، تو ہمیں بہت اچھا لگنے لگتا ہے، دل یہ کرتا ہے کہ یہیں بیٹھے رہیں۔ تو مائنڈ پر اثر پڑتا ہے۔ مائنڈ کے اندر ہمارا جو برین ہے، اس کے اندر اربوں خربوں سیلز ہیں، اور اس کے ذریعے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ برین ہی سے تو ہم کام کر رہے ہیں۔ سارا فنکشن جو ہے وہ برین سے ہی ہو رہا ہے۔ باڈی جو ہماری ہے وہ برین سے ہی ریگولیٹ ہو رہی ہے، اور ناک جو ہے ہم دیکھیں تو سر کے پاس ہی ہے۔ تو اگر صفائی نہیں ہوگی تو مانی سی بات ہے کہ بیڈ اسمیل کہیں نہ کہیں وہ ایمرج ہوگی، پیدا ہوگی، اور وہ ناک کے ذریعے ہمارے ذہن میں جائے گی، اور جب وہ جانے لگے گی ہم ہیبیچول ہو جائیں گے بیڈ اسمیل کے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک تو ہمارا جسم جو ہے وقت کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیماریوں سے گھرنے لگے گا۔ اب کون سی بیماری ہمارے جسم سے ظاہر ہوگی یہ بتایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے اندر سے خوبصورتی کو محسوس کرنے کا جو ایک کہہ سکتے ہیں ایک طاقت ہوتی ہے، وہ زائل ہونے لگے گی۔ تو صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب چیزیں ہمارے ماحول میں اچھی ہوتی ہیں تو ہمیں اچھا بھی لگتا ہے، خوشی ملتی ہے، اور احساس کی زندگی میں بہت اہمیت بھی ہے۔ اگر ہمارا احساس ہی مردہ ہو گیا، ہم نے اس کو مردہ ہونے دیا، تو غلطی کس کی ہے؟ اگر ہمارا کمرہ مان لیے گندا ہے، چیزیں ادھر ادھر پھینکی پڑی ہوئی ہیں، اور ہم اسی میں رہ رہے ہیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احساس مر چکا ہے۔ اچھا، جو لوگ اس طرح کے کمروں میں رہتے ہیں، یا آس پاس سراؤنڈنگ ان کی بہت ڈرٹی ہے، اور وہ رہ رہے ہیں، اور پھر ان کو بہت ہی خوشنما ماحول میں ویل ڈیکوریٹڈ کسی مکان میں وہاں پر لے جایا جائے، بیٹھیں، تو وہاں پر انہیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن وہ جب اپنے ماحول میں آتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، یا اپنے علاقوں میں آتے ہیں جہاں گندگی کا انبار لگا ہوا ہے، چیزیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں، تو پھر اسی میں ہو جاتا ہے ان کا احساس۔ وہاں تھوڑی دیر کے لیے تو جگتا ہے، یار مکان تو بڑا اچھا ہے، یہ ایریا بڑا اچھا ہے، لیکن پھر اپنے اس میں آ جاتے ہیں تو عادت سدھرتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک احساس ہمارا مر چکا ہے نا۔ جب پودا سوکھ جاتا ہے تو اتنی آسانی سے اس میں زندگی نہیں آتی ہے، ہمیں پھر اس میں لگاتار پانی دینا پڑتا ہے، تب جا کر کے کہیں تازگی دھیرے دھیرے اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے آس پاس کے ماحول میں دیکھیں کہ کہاں کس طرح سے گندگی ہے، تو اس سے ہم لوگوں کے بیہیو کو، لوگوں کی سوچ کو بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ لوگ کتنے اویئر ہیں، کیونکہ صفائی جو ہے وہ آدھے ایمان کے برابر ہے۔ اس کو بتایا گیا ہے حدیث کے حساب سے، یعنی جو ہم ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور ایمان کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو ہم کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم ان کو رسول مانیں گے دل سے، تب ان کی جو بھی باتیں ہیں اس کو بھی ہم ایکسپٹ کر لیں گے، اس میں کسی طرح کا سوال نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس لیے ایمان
की वुसअत बहुत ज़्यादा है, उसमें सफाई को भी शामिल किया गया है। और ये सफाई सिर्फ ज़ाहिरी नहीं है, बातिनी भी है। अंदर से भी हमें साफ होना होगा, हमारी सोच भी सही होनी चाहिए। अगर हम किसी के लिए नफ़रत रख रहे हैं, हम किसी के लिए बुग़्ज़ रख रहे हैं, हसद रख रहे हैं, तो ये सारी बीमारी जो है वो हम अपने जहन में जब रखेंगे तो इसका कोई अच्छा असर तो हमारे जहन पे आएगा नहीं, न जिस्म पे आएगा। अगर कोई चीज़ खराब होगी तो वो उसका असर भी तो खराब ही होगा। अगर हम हसद रख रहे हैं, किसी के लिए भी रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं पेन को सफ़र करना पड़ेगा। हसद का मतलब है कि हम किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी जो निगेटिव चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं दुख को, गम को लेकर के आती है, दबाव को लेकर के आती है, टेंशन को लेकर के आती है, जिसका कि हमारे सेल्स पर, कोशिकाओं पर असर पड़ता है। कहा जाता है कि अगर ज़्यादा तनाव हो, ज़्यादा फिक्र हो तो इंसान को कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं लोग, दिल बढ़ जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में सफाई को बना करके रखें, आसपास के माहौल को अच्छा रखें, देखने की कोशिश करें कि कौन लोग हैं जो किसी भी इलाके को या कहीं पर भी गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, उनकी लाइफ कैसी है, उनका एहसास कैसे मर गया कि वो सफाई पर गौर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हमारा एहसास मर जाता है, तो हमें फिर किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती। हो सकता है लोग ज़िंदगी से उदास हो गए हों, इसलिए किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, फिर वो सफाई भी नहीं करते। क्योंकि अंदर से हम कह सकते हैं एक उमंग जो होती है जब मर जाती है तो फिर किसी चीज़ की तरफ जहन नहीं जाता है। ज़्यादातर देखने में ये आता है कि कहीं ना कहीं पैसे की दौड़ जो है, यानी पैसे को पाने की जो चाहत है, वो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर बहुत गहराई से बैठी हुई है। क्योंकि दुनिया पैसे से चलती है तो लोगों की फिक्र भी पैसे की तरफ ही मरकूज रहती है। लेकिन पैसे को हासिल किया जा सकता है अगर हम खुद को डेवलप कर लें और अपनी सलाहियतों को बढ़ा लें, किसी भी फील्ड में बढ़ा लें। तो जो चीज़ सोसाइटी की ज़रूरत होती है तो सोसाइटी उसके लिए पे करेगी। हम अगर सर्विस देंगे तो सोसाइटी उसको पे करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने को किसी फील्ड में माहिर बनाएं और अपने वक्त को ज़ाया न जाने दें। अगर हमारा वक्त ज़ाया चला जाएगा तो फिर उम्र तो एक लिमिटेड उसमें होती है, कोई ज़्यादा तो होती नहीं। तो इसलिए बेहतर ये है कि वक्त को ज़ाया न करने दिया जाए और देखा जाए कि जो लोग गंदगी के साथ रह रहे हैं उनको हम हिदायत दें, उनको बताएं कि देखिए सफाई रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गंदे माहौल में रहते हैं तो अक्सर कोई किसी न किसी बीमारी से भी घिरे हुए होते हैं। क्योंकि बात एकदम साफ है कि गंदगी का मतलब ये है कि वहाँ से उसके साथ स्मेल भी जुड़ी होती है, वहाँ से एक बैड एनर्जी कह सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी जो है वो जनरेट होती रहती है, जो हम उसको देख नहीं सकते लेकिन वहाँ वो रहती है। वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती रहती है उस डर्टी एटमॉस्फेयर से। तो इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ गंदगी हो वहाँ से बचा जाए और लोगों को हिदायत की जाए, बताया जाए कि आसपास के माहौल को अच्छा बना कर रखिए, सफाई रखें। जब सफाई रहती है तो जहन पर अच्छा असर पड़ता है, इससे बहुत सारी बीमारी जो हमारे जिस्म में है वो भी चली जाती है। दोनों बातें हैं ना, अगर गंदगी से बीमारी आती है तो सफाई से चली भी जाती है। सफाई कहा जाता है कि जब लोग साफ रहते हैं, जिस्म को भी साफ रखते हैं, अपने जहन को भी पाक रखा हुआ है, लोगों की मदद की जा रही है, किसी से हसद को रखा नहीं जा रहा है, हम दूसरों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को जब हम सपोर्ट कर रहे हैं और सामने वाले की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है तो उसका असर तो हमारी लाइफ पे ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारी भी मदद होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि बातों को उसकी गहराई में जा कर के महसूस किया जाए। अगर हम गहराई में जा कर के महसूस करेंगे, जाएंगे, तब हम अपने अमल को उस तरफ मरकूज कर सकते हैं, उस तरफ उसको दिशा दे सकते हैं। वरना होता ये है कि जो चीज़ हमारे एहसास में नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझते हैं, तो फिर उसके अमल में हम उसको कैसे लेकर के आएंगे। अमल का सारा दारोमदार तो हमारी सोच पर है। अगर हम किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो फिर वो अमल भी नहीं करते, और पसंद करते हैं तो उस काम को करते हैं। तो बेहतर ये है कि हम अपने जिस्म से शुरू करें। यानी ये देखना चाहिए कि रात में जब हम सोते हैं तो ब्रश करते हैं कि नहीं करते हैं, सुबह उठने के बाद
ब्रश करते हैं नहीं करते हैं, अपने मुंह को ही पहले साफ रखा जाए, क्योंकि मुंह से भी क्या होती है, बदबू आती है। बहुत सारे लोगों से मुंह से बदबू आती रहती है, लेकिन लोग इस बात पर गौर ही नहीं करते और दूसरों को तकलीफ होती है। पास जाने पर लोग बैठ करके जब आपस में बात करते हैं तो मुंह से जो बैड स्मेल आती है उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। लोग मुतनफ़िर हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं और मुलाकात करने को पसंद नहीं करते। उनको डर रहता है कि पास बैठेंगे तो फिर उस बैड स्मेल से सामना होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले अपने मुंह को साफ़ किया जाए। अगर नीम की दातून मिल सके कहीं हासिल उसको किया जाए तो कोशिश की जाए कि उससे हम साफ़ करें, या फिर किसी डॉक्टर से मिलें कि हम किस तरह से अपने मुंह की बदबू से दूर हो सकते हैं। तो पहले तो हमारा मुंह का मामला है, फिर जिस्म का मामला आ जाता है कि हम रेगुलर पैर को देखें, पैर के आसपास हमारे मैल तो नहीं है, उसको पैर में साफ करें, क्योंकि पैर की तरफ लोगों का ध्यान जहन उतना जाता नहीं है। अपने स्किन को भी मेंटेन कर रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमारा लुक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग निगाहों से देखते हैं तो बाल हमारा सही होना चाहिए, उसमें बीच बीच में ऑयल लगाते रहें, क्योंकि ऑयल की भी अपनी एक अहमियत है। और लगाने के बारे में कहा भी जाता है कि तेल सर में लगाते रहना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि 2-2 महीने हम सर में ऑयल ही ना लगाएं, क्योंकि जो भी चीज़ें सोसाइटी के अंदर चल रही हैं वो ऐसे नहीं चल रही हैं, उसके पीछे हिकमत है और उसका एक हम कह सकते हैं एक औषधीय असर होता है। तो इसलिए बेहतर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम बाहर से आ रहे हैं, हमारे चेहरे पे धूल लगी हुई है, हमने पानी से अपना चेहरा धो लिया तो उसमें धूल हमारी स्किन में जमेगी नहीं, उससे कालापन चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम अवेयर होंगे जब समझेंगे कि कोई भी चीज़ जो गंदी होती है, कमरा हमारा गंदा है, आसपास का माहौल गंदा है, तो वहाँ से फिर नेगेटिव एनर्जी, बैड स्मेल जनरेट होने लगेगी और फिर उसका फिर हमारे एहसास पर, क्योंकि हम उसको फिर नाक के ज़रिए हमारे जहन में वो चीज़ जाएगी और फिर हमारा जहन जो है वो गंदगी को लेकर के मानूस होने लगेगा, उसके लिए वो फिर एडजस्ट करने लगेगा, फिर हमारा एहसास भी मरता चला जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि सफाई को बना करके रखा जाए और लोगों को हिदायत की जाए और देखा जाए कि लोग किस तरह से अपने कमरे को एडजस्ट किए हुए हैं। हम कहीं भी जाएं तो देखें, तो इससे क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ जब देखेंगे किसी चीज़ को तो पता लगेगा कि लोग किस तरह से रह रहे हैं। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लोग इतना सब जानते हैं, इसके लिए इल्म की कोई ऐसी नहीं है। ये तो एक आम सी बात है कि हम अपने जिस्म को साफ रखें, आसपास के माहौल को साफ रखें, या हम इसे पसंद नहीं करते। तो इसलिए देखें कि कहाँ कौन किस हालत में लोग रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, वैसे ही क्यों रह रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, सफाई क्यों नहीं की जा पा रही है। तो बहुत सारे रीज़न है, जब हम देखेंगे तो हमें बातें समझ में आएगी।